Good evening, sir. Good evening, beta. Okay, good evening, everyone. Please confirm I am audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Okay, so let's start. है ना? This is our last chapter in science. जो बेटा चैप्टर सेल का रिवीजन है ना? So that I'll be taking with class 9 cell chapter. तो उसमें I'll keep it optional. If you are interested, you can attend the same. So It will be optional 8? for 8. Okay. Hello. Okay, I think this is one of the most interesting topic. Everyone is interested to know about stars and solar systems. Most of you have already gained knowledge through YouTube and internet. I think कुछ schools में एक special club भी बनाते हैं ना? Is it so? आपके school में है कोई club related to No, sir. astronomy? No? Okay. चलो ठीक है बेटा when we say about atom is too small beyond your imagination है ना इतना छोटा है आप imagine भी नहीं कर सकते हैं कि how small atom is same way universe it's too big so big it's beyond your imagination how big universe is आप जितना मर्जी बड़ा imagination करें universe is bigger than that ठीक है so हम So the इसमें पूरा है universe, ना we'll decode everything हाँ जी sir, every 1 second universe expands 60 kilometer. 60 kilometer what is 60 kilometer हाँ जी what is 60 kilometer okay we'll decode that है ना यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है कितनी फास्ट एक्सपेंड कर रहा है हाउ वी आर मेकिंग आउट इट्स एक्सपेंडिंग ठीक है हम जो स्काई में देखते हैं सो वी सी यू नो स्टार्स इन आर मिल्की वे स्काई में जो 99% आपको दिख रहा है दोज आर स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी उसके बाद यू कैन सी फ्यू ऑफ द गैलेक्सीज विच आर नियर बाय देन हाउ वी आर मेकिंग आउट कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है how you make out कि something is going away from you okay so can you tell me earth is part of what beta anyone joining the group please make sure your mic is off okay Sir, earth is part of what Solar system. very good solar system and solar system is part of what Milky Way. Milky Way galaxy. Milky Way. milky way galaxy and milky way galaxy is part of what there's a small local group is there that's consisting of 4 galaxies so that's a local group and this local group is part of a bigger super cluster is there that's Virgo super cluster okay that's part of Virgo super cluster and this is part of universe what we can see and perceive it's not yet confirmed that that's the only universe which is there ठीक है तो सभी के बारे में डिकोड करेंगे हमारा चैप्टर मेनली जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में है ठीक है सो दिस फॉर्म्स 90% ऑफ आवर चैप्टर और यहाँ पर जो है एक फेक आइडिया हम लेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट स्टार्स एंड फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू स्टार्स विल डिस्कस ठीक है तो सबसे पहले सोलर सिस्टम की बात करेंगे हम अच्छा यहाँ पर जो है वो व्हेन यू टॉक अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन है ना तो यू नो ओनली अबाउट द अर्थ कि अर्थ रोटेट कर रही है अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन बट दैट थिंग इज नॉट
There are things called multiverse also. हाँ जी, हाँ जी. Multiverse in a sense they say कि universe जो हम देख रहे हैं, perceive कर रहे हैं, उसके अलावा there may be some more parallel universe are there जो which we are not able to observe. So rotation and revolution is not only related to Earth, है ना? It's related to everything. अगर आप सन की बात करेंगे तो सन का भी अपना एक एक्सिस है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है. ठीक है. रेवोल्यूशन, सन किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है भाई? एनीवन? Black hole. ब्लैक होल? नो. Sir, Sir, what? can you repeat the question? क्वेश्चन इज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. हाँ जी प्रथम, आपका आंसर करेक्ट है. Sir, it revolves है ना? around Milky Way. It revolves around the Milky Pratham, Way. Ronak? Not Milky Way. This is part of, sun is part of Milky Way. It revolves around the center of Milky Way, or that is galactic center is what we are talking about. ठीक है. तो ये हमारा मिल्की वे है. मिल्की वे में 30,000 और एग्जैक्ट इज 26,000 लाइट ईयर्स अवे इज योर सोलर सिस्टम इज देयर इन दिस मिल्की वे. मिल्की वे का जो डाया है, रेडियस है बेटा, दैट इज 50,000 लाइट ईयर. ठीक है. इसमें समवेयर एट 30,000 लाइट ईयर इज योर सोलर सिस्टम एंड इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. इस स्पीड से जो है पूरा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. एग्रीड? जस्ट नोट डाउन दिस, गैलेक्टिक सेंटर एंड 240 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? ये फिगर एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट सन सोलर सिस्टम इज रिवॉल्विंग अराउंड गैलेक्टिक सेंटर. Okay, let's move ahead. So, what is solar system made up of? हाँ जी, one by one, raise your hand. What is solar system made up of? Solar system की हम जब बात कर रहे हैं, तो what all is there in this solar system? हाँ जी दिव्यांश. Sir, different type of हेवनली बॉडी gases. तो सारी चीजें हो गई बेटा. हाँ जी दिव्यांश, वैसे बोलो. Sir, different type of gases. डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो सोलर सिस्टम वी से इज मेड अप ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड सम सैटेलाइट्स. आप सीधा गैसेस पर आ गए बेटा. आप बताओ मुझे, चलो अब आप दिव्यांश बताओ, सोलर सिस्टम में कौन सी गैसेस होती हैं जो हम खाने के बाद छोड़ते हैं? दिव्यांश Yes, बताओ sir. कौन सी गैसेस हैं सोलर सिस्टम में? So from which the planets are made? तो बेटा आई एम नॉट सेइंग कि सोलर सिस्टम किस चीज कब कैसे बना, कैसे पैदा हुआ. दैट्स आई एम नॉट आस्किंग ना. तो आप मुझसे आप बात करेंगे किसी से भी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में जब आप आउटर लेयर को, एग्जॉस्फेयर को क्रॉस कर रहे हैं, देन इट्स ऑल वैक्यूम इज देयर. तो गैसेस कहाँ से आ गई यहाँ पर, है ना? ओके श्रेयांशु, तो पहला तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, ये तो मैंने बोल ही दिया. इट्स मेड अप ऑफ सन विच इज अ स्टार, then it's made up of 8 planets and it's made up of satellites of those planets. Besides that, हाँ जी, fourth, अनिकेत. Sir, meteors and asteroids. श्रेयांशु आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बेटा. So it's made up of, okay, meteors जो है वो बेटा asteroids entering into the Earth's atmosphere, they become meteors, है ना? So I'll just write down asteroids only, है ना? Meteors तो वो आपका अर्थ से रिलेटेड हो गया. So there So are also fifth one, comets in the Kuiper belt. comets, very good. So it's also made up of Kuiper belt is part of solar system. Okay, what else? Sir, SSSB. Speak out. हाँ जी, फिर से. Sir, SSSB. Sir, small solar system body. Smaller solar system bodies. So that is your asteroid and comets. They are called as small solar system bodies.
हाँ जी, समथिंग शौर्य सक्सेना हैज मेंशन्ड, बेटा प्लीज कम आउट। शौर्य सक्सेना, ओके, रौनक ने भी मेंशन किया है, माइक पे बोलो बेटा। Sir, 5 dwarf planets. 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है इनका नंबर जो है इट कीप्स ऑन, इट इज एट प्रेजेंट इंक्रीजिंग। ओके, वन मोर थिंग इज लेफ्ट, एनीवन? वेरी गुड श्रेयांशु, है ना? श्रेयांशु इज सेइंग सर ओट क्लाउड, OORT, ओट क्लाउड। नोट कर लें, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में 1 by 1 विल स्टडी। इनमें पहले कुछ चीजें देख लेते हैं ना। कुछ लोग बहुत ही क्यूरियस हो रहे हैं कि सर ये है क्या, ये है ना, कैपर बेल्ट की बात कर रहे हैं या ओट क्लाउड की बात कर रहे हैं, व्हाट ऑल इज दिस? हाँ जी, प्लूटो इज ड्वार्फ प्लैनेट, नो मोर अ प्लैनेट। चलो जी, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं ना बेटा, तो लेट्स से अगर मैं आपसे दिल्ली की बात करूं, आप सिर्फ कनॉट प्लेस के आसपास ही घूमते रहे ना, वो गलत है। सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका सन है, ये उसके 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इस 8 प्लैनेट्स के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो है ये केपर बेल्ट इज देयर, QUIPER, केपर बेल्ट इज देयर, ठीक है। इस केपर बेल्ट के बियॉन्ड जो है देयर आर सन, जो है दिस इज सेंटर ऑफ ऑल दिस, है ना। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सभी को होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसके बियॉन्ड जो है यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ कॉमेट्स आर देयर व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कुछ का जो है, जो आपका सर्कल है, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो इतना बड़ा है कि वो 8 प्लैनेट्स की विसिनिटी में आता ही नहीं है, ठीक है। इन सब के बियॉन्ड, ठीक है, देयर इज एन ओट क्लाउड इज देयर, दिस इज ओट क्लाउड, ठीक है। ओट क्लाउड इज वो सब डस्ट पार्टिकल्स, वो सब स्मॉल बॉडीज विच आर holded by the gravitational force of sun. They are very very far away but still being holded by the gravitational force of sun. Something similar to earth. अगर आप earth लेंगे, है ना, if you take earth, तो earth के आसपास जो है बेटा, यहाँ पर जो है आपका most of the air is there, ठीक है। but exosphere has got this much of boundary, ठीक है। ये सब जो है विद इन 600 किलोमीटर आ जाता है और एग्जॉस्फियर इज विद इन 10,000 किलोमीटर। तो इतनी दूर तक भी एयर जो है दैट इज बीइंग होल्डेड बाय द अर्थ ग्रेविटी। सेम वे में, है ना, हेवनली बॉडीज विच आर बीइंग होल्डेड बाय द सन्स ग्रेविटी, है ना, विच इज रियली फार अवे, दैट इज व्हाट इज ओट क्लाउड इज देयर, ठीक है। तो क्यूपर बेल्ट इज सेम एज एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में बेटा? बिटवीन मार्स और जुपिटर। एंड जुपिटर, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट बहुत थिन है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में पूरा हर एरिया में जो है एस्ट्रॉइड्स आर नॉट देयर, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में अगर ये आपका बेटा, सॉरी नहीं, नॉट, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह ही आपका क्यूपर बेल्ट है, और उसका वेरी फाइन वर्जन इज ऑट क्लाउड, बट दैट इज इन स्फेरिकल शेप इंस्टेड ऑफ रिंग। लेट्स सी हियर। ये आपका सन है, ठीक है, दिस इज सन इज देयर, दिस इज जुपिटर, समवेयर हियर यू हैव गॉट एस्ट्रॉइड बेल्ट इज देयर, ठीक है। एंड देन दिस इज योर नेपच्यून इज हियर। नेपच्यून के बाद जो है दैट्स केपर बेल्ट में आपका लॉट ऑफ हेवनली बॉडीज आर देयर, ठीक है, लॉट ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर देयर। वन ऑफ द प्राइम रीजन व्हाई प्लूटो वाज नॉट is being taken out from main planet is this only that Pluto lies beyond Kuiper belt, ठीक है। तो इसको एक बाउंड्री माना गया है फॉर मेन प्लैनेट्स। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि मेन प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तभी वो मेन प्लैनेट कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी ड्वार्फ प्लैनेट। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, in this picture, the motion of the Pluto is slightly tilted. Why it is like that? it's more elliptical,
ठीक है. Yes, sir, So it is elliptical. this elliptical orbit is what again is confirming कि ये जो है this is not main planet. आपका जैसे कॉमेट्स वगैरह का जो है ऑर्बिट जो है वो बहुत एलिप्टिकल होता है. ठीक है. हेली प्लैनेट अगर आप देखेंगे तो हेली कॉमेट का जो ऑर्बिट है दैट इज लाइक दिस, वो बहुत ही ज्यादा एलिप्टिकल है ना. तो there is no any peculiar reason ki why its orbit is so elliptical. It is just the basically at this orbit it got itself settled down. ठीक है. हो सकता है वो सर्कुलर पे भी सेटल कर जाता, हो सकता है अर्थ का ऑर्बिट जो है वो थोड़ा और एलिप्टिकल हो जाता. सो दैट्स, हो सकता है प्लूटो इज बीइंग हिट बाय some heavenly body and its orbit got more elliptical. This is what I was talking about by Oort cloud. ठीक है. This is your solar system is there at the center. ठीक है. ये जो मैं white dot बनाया है ना, ये white dot जो है ये सन नहीं है, पूरा आपका 8 planets भी हैं यहाँ पर. ठीक है. Kuiper belt is there. वो Kuiper belt जो है वो यहीं तक है, उसके beyond this is Oort cloud is there. इस Oort cloud का कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं. प्रैक्टिकल प्रूफ में यू हैव टू सी इट विजुअली. कोई माइक्रोस्कोप इतना और कोई टेलीस्कोप इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन छोटी हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करे, देख सके, है ना. जो ऑब्जर्वेंट है, जो ऑब्जर्वेबल बॉडीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में है. दिस इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, जो कॉमेट्स वगैरह हैं. दिस थियोरेटिकली दे आर सेइंग दैट दिस ओर्ट क्लाउड इज प्रेजेंट. हाँ जी, यश, यू आर सेइंग समथिंग, यश भंडारी. No, okay. Right. So this is your sun with 8 planets, you know. This is your sun with Kuiper belt, and this is your solar system with Oort cloud in it. ठीक है. जो आपका बेटा अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, डिस्टेंस इज मेजर्ड एज पर द, जो यूनिट हम लेते हैं दैट इज एज पर द डिस्टेंस विच इज टू बी मेजर्ड. अगर मुझे यहाँ से, है ना, फ्रॉम माई हाउस आई हैव टू मेजर हाउ फार इज इंस्टीट्यूट, आई विल मेजर इट इन मीटर्स नॉट किलोमीटर्स. ठीक है. दिल्ली से लेकर बॉम्बे कितनी दूर है, आई विल मेजर इट इन किलोमीटर्स. ठीक है. इफ आई हैव टू मेजर कि अर्थ से लेकर और लेट्स से जुपिटर से लेकर, ठीक है, जुपिटर से लेकर सन तक का डिस्टेंस कितना है, Light year. नहीं बेटा, लाइट ईयर इज द वेरी वेरी बिग यूनिट. अगर ये आप डिस्टेंस मेजर करेंगे लाइट ईयर में, आपका आंसर आएगा 0.00712 लाइट ईयर, है ना, समथिंग लाइक दैट. बट ये जो डेसिमल में, इतने डेसिमल में आ रहे हैं तो यूनिट सही नहीं ली मतलब आपने. ठीक है. उसके लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. कोई यहाँ पर देख के बताएगा ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या हो सकता है? The distance between the Earth and the Sun equals to 1 astronomical unit. वेरी गुड. ठीक है. एस्ट्रोनॉमिकल, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिस्टेंस बिटवीन. ठीक है. ये जो डिस्टेंस है दिस यू कॉल एज मीन डिस्टेंस, उसकी बात बाद में करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. Within the solar system to measure the distance we use astronomical unit. ठीक है. फटाफट देख के बताओ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल है? Distance between Earth and Sun. How much is that? हाँ जी, how much is 1 AU बेटा? Sir, 150 million. हाँ जी, 150 million kilometer is how much? That is The 15. distance between the Earth and the Sun. हाँ जी. ठीक है. So that's 150 million kilometer.
or that's 15 crore kilometers. The distance is there. That is what is 1 AU is there. ठीक है, और फटाफट बताओ मुझे 1 लाइट ईयर कितना होता है? Sir, 3 lakh kilometer per second. kilometers. किसी ने बोला 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. बेटा दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. 1 लाइट ईयर किसको बोलते हैं हम? 1 लाइट ईयर. ठीक है, दिस इज नॉट द Distance traveled यूनिट by ऑफ. light in 1 year. हाँ जी, दैट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. लाइट की स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर. ये क्या हो गया भाई? कोडिंग. One minute. Okay, I'm audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So distance traveled by light in 1 second is 3 lakh kilometer per second और 3 into 10 is to power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, किलोमीटर में ही ले लेते हैं ना. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बेटा? 3 लाख. 1 मिनट में 3 लाख इंटू 60 सेकेंड है ना, और 1 आवर में इंटू 60. 1 डे में, एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24. 24 hours. इंटू 24. कितने डेज होते हैं? 365. 365. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट डिस्टेंस इन 1 लाइट ईयर. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 9 ट्रिलियन किलोमीटर. नोट डाउन कर लें कन्वर्जन भी. और 1 light year is 63,000 AU. So Ronak once copied, let us know please. Yes, sir. Copied. चलो एवरीवन कॉपीड. तो ये फिगर याद होनी चाहिए आपको, है ना. दिस फिगर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड 150 मिलियन किलोमीटर, 1 AU is 150 million kilometer. This is also very important. And this is what your solar system looks like. ठीक है, ये सन है. सन से 1 AU is your अर्थ. ठीक है, अगर नेपच्यून की बात करेंगे दैट इज विद इन अराउंड 20 और 30 AU. उसके बियॉन्ड 100 AU तक योर केपर बेल्ट इज देयर. ठीक है, और उसके बियॉन्ड जो है 1000 AU तक इज योर ओट क्लाउड इज देयर. ठीक है, तो ओट क्लाउड जो है इज वेरी वेरी फार अवे. ओट क्लाउड इज स्फेरिकल इन शेप अनलाइक क्यूपर बेल्ट विच इज सर्कुलर इन शेप. ठीक है, ओट क्लाउड 3D फिगर है और वो स्फेरिकल होगा. चलो लेट्स नोट डाउन सम फैक्ट्स अबाउट सन. ठीक है, हेडिंग देंगे सन. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू सन रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस. खाली रिवॉल्व नहीं करता है, वो रोटेट भी करता है. एंड रोटेशन पीरियड इज 25 days.
आपका होमवर्क है, आप ग्रुप पर सनस्पॉट के बारे में पोस्ट करेंगे। ठीक है, सनस्पॉट्स की साइकिल है, ठीक है, वो साइकिल कितने इयर्स की है वो भी आप पोस्ट करेंगे। हाँ जी, एनीवन एनी अदर फैक्ट अबाउट सन? सन इज अराउंड 100 एंड, हाँ जी बोलो। सन इज अराउंड 110, okay, sun radius is around 110 times Larger than the Earth. Earth's radius. Sir, sun Six is lakh around 96,000 Sir, kilometers. Sir, हाँ sun जी, is around 50 million years old. 50 million? Sir, yes, sir. Sir, I think. No, no, 15.7. no, 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 no. Sir, the Earth is only in some billion years. बेटा जो यूनिवर्स है that they say is 15 billion years old है ना, sun is around 4.5 4.5. billion years, ठीक Sir, है, also and it is composed of hydrogen gas. it's made up of hydrogen, only hydrogen, And helium also. And हाँ helium जी, also. 3/4 of hydrogen plus 1/4 is helium. It's purely made of gas, out of which 3/4 is hydrogen gas and 1/4 is helium. मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, क्या मिस्टेक हुई है मुझसे? सर आपने दोनों कैपिटल में लिखे है H. तो क्या हुआ? H बेटा एलिमेंट का सिंबल है, कैपिटल में आएगा। दिस इज योर सोडियम इज देयर, कार्बन इज देयर, ठीक है, तो एलिमेंट का पहला सिंबल कैपिटल में होता है और दूसरा सिंबल हमेशा, दूसरा पार्ट जो हमेशा स्मॉल में होगा। क्या मिस्टेक हुई है? हीलियम कौन सी गैस है? इनर्ट गैस है ना, हीलियम डज नॉट रिएक्ट, बट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा वो हमेशा मॉलिक्यूल में होगा, तो ये H2 आना चाहिए, है ना, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? आप ऑक्सीजन हमेशा ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं दिस इज ऑक्सीजन, नो नो नो, यू राइट दिस इज ऑक्सीजन, इजंट इट? सेम वे हाइड्रोजन हैज टू बी H2. ओके, व्हाट एल्स? The sun is the largest object in the solar system. वेरी गुड, सन इज कंसिस्टिंग ऑफ 99% वेट ऑफ सोलर सिस्टम। सन जो है पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% वेट सन से है, Sir, ठीक है। it is a star. इट इज अ स्टार, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने पूछा राइट फैक्ट्स अबाउट अर्थ, तो यू से इट्स अ प्लैनेट, इट्स अ प्लैनेट ऑन विच आई लिव, सो इट्स अ प्लैनेट ऑन विच इंडिया इज देयर, है ना, दोज ऑल आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो, इसमें एक जो रह गया है कि सन का जो सरफेस टेम्परेचर है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, सो दिस इज सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। देखने में बहुत कम लग रहा है बट इट्स नॉट सो लेस, और इसका जो कोर टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर दैट इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। Sir, sun has some loops on its surface, which is known as the prominence. Yes, sir, prominence. हाँ, वो जो लूप्स है बेटा, उन लूप्स की वजह से और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, है ना, सनस्पॉट की एक्टिविटीज होती हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डीप। हम अभी बात करेंगे, सन की बात कर रहे हैं। मुझे एक बार फटाफट बता दो, सन इज डैश टाइम बिगर देन अर्थ, सन जो है अर्थ से कितना टाइम्स बिगर है? हाँ जी, फटाफट बोलो। 110 times. Impressive, very good, ठीक है। I told you before also, I love this batch because everyone participate, है ना, सभी participate करते हैं, इसलिए बैच मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। So it is, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन यहाँ पर हो गया बेटा, ठीक है। मिसकंसेप्शन कैसे है? अगर मैंने बेटा एक मार्बल लिया, छोटा सा मार्बल, ठीक है,
और मैंने एक लेट्स से फुटबॉल से बड़ी वाली फुटबॉल ले ली है ना। सो अब क्या होगा, इसका रेडियस जो है लेट्स से 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर ज़्यादा बोला मैंने ना, फुटबॉल ही ले लिया मान लो है ना। इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस अगर मैं 100 टाइम्स बिगर कर दूं तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर मीन्स 3 फीट, 3.5 फीट रेडियस हो गया ना, 3.3 फीट रेडियस, बहुत बड़ी फुटबॉल हो गई। ये कितने मार्बल इसके अंदर आ सकते हैं, अगर आप बोलोगे 100 मार्बल तो ये 100 मार्बल तो यहीं पर ऐसे आ जाएंगे 100 मार्बल। ठीक है, कितने मार्बल आ सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 100 into 100 into 100। ठीक है, that is 1 million marbles can fit into this। ठीक है, so when I'm asking sun is how bigger than earth, I'm not interested in the ratio of the radius but ratio of volume। so sun is around 1.3 million times bigger than earth। Sir, isn't it 333 000? that is Because I was going through some facts. mass of sun। ठीक है, sun mass is 333,000 times earth mass। volume wise sun is this much time bigger। ठीक है, डन डन डन। अब मुझे फटाफट बताओ, चलो पहले कॉपी कर लो है ना, आई विल गिव यू हाफ अ मिनट देन वी विल डिस्कस समथिंग। Sir, copied. so fast, let's wait for others। Sir, noted. Sir, can you scroll up a okay, bit? this part। Yes, sir. Sir, done. Thank you, sir. okay, Sir, please scroll it down. okay, मोना ओके, लेट्स सी हियर। अब एक चीज बताओ, आप लोगों ने सुना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Yes, sir. क्या मतलब होता है इसका? नहीं सर एनर्जी को अलग Sir, अलग energy मेथड से never कंजर्व gets करना। created or destroyed. एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि सन जो है इतनी सारी हीट एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज कर रहा है, तो वो उसके पास वो एनर्जी आ कहाँ से रही है भाई? उसकी अपनी कोई किचन तो है नहीं जहां पर बैठ के वो एनर्जी को पका रहा हो, बना रहा हो। ठीक है, अगर सन एनर्जी बना नहीं सकता तो वो किसी चीज में कोई एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा हीट एनर्जी में, है ना? तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर? Sir, combustion. Nuclear fusion. कंबशन किसका कंबशन बेटा? कोल का? Sir, the Hydrogen. gases. Sir, Sir, the gases which are present in it. Okay, hydrogen, helium is not combustible, hydrogen is the best fuel, but hydrogen gas अगर पूरी की पूरी उसको जलाएंगे तो मतलब दे से कि हाइड्रोजन गैस फुल जो है इट विल बर्न इन 120 years, और अगर वो कोल बना देंगे उसको, सन को पूरा का पूरा कोल, इट विल बर्न आउट इन 5000 years। सन तो ऑलरेडी 4.5 billion years old है and its further life is estimated 5 billion years more। so it's nuclear fusion, someone is saying। I agree, totally agree with it। Yes, Nuclear sir. fusion is happening inside the sun, but question again goes that
दैट हीट एनर्जी, ये आ कहाँ से रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन तो हो रहा है, बट कौन सी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अनदर फॉर्म वो तो ठीक है, हीट एनर्जी हो गई, बट इनिशियली वो कौन सी फॉर्म में थी सन के पास? ठीक है, कोल को बर्न किया तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हाइड्रोजन गैस को बर्न किया तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, बट यहाँ पर कुछ बर्निंग तो हो नहीं रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स, आपको हाइड्रोजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और इट्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, नथिंग रिलेटेड टू सीबीएसई। ठीक है, यू हैव हर्ड ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, उसकी फेमस इक्वेशन क्या थी बेटा? E equals mc square. Impressive, too good. E equals to mc square. ठीक है, what Albert Einstein said that energy plus mass together are conserved. That what he said is energy and mass together are conserved. Mass can be converted into energy, energy can be converted into mass. That was big thing. When he said this, लोगों ने बोला पागल हो गया है, क्योंकि उसने जो है मतलब he said something 50 years ahead of the time. ठीक है, आज से अगर 50 साल पहले कोई बोलता कि भाई ऐसे ऐसे आप टीवी बना सकते हो या कंप्यूटर बना सकते हो, तो सब मजाक बनाते हैं ना. सेम थिंग हैपेंड विद हिम. सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज सन के अंदर, ठीक है, इन सन दिस रिएक्शन इज हैपनिंग. इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? हाइड्रोजन जो है वो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग हीलियम. ठीक है, हाइड्रोजन, I am not writing down the full equation, but you make out hydrogen and hydrogen together they are combining to form helium. ठीक है, इस प्रोसेस में some amount of mass is getting lost. ठीक है, every second, amazing fact है ना, very amazing fact, every second 700 million ton of hydrogen is combining to form 695 million ton of helium gas. अब ये 5 मिलियन टन गया कहां पर? Sir, I think it was lost Sir, during it the is fusion. converted into heat energy. 8 energy. It's converted It is into energy, है ना? कितनी एनर्जी मिली? ओ माय गॉड, एनर्जी इज इक्वल्स टू मास. कितना मास? 5 मिलियन टन. 5 मिलियन एंड टन को केजी में कन्वर्ट कर दिया हमने. c इज द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, दैट इज 3 into 10⁸ स्क्वायर जूल. इतनी सारी एनर्जी जो है वो पर सेकेंड रिलीज हो रही है सन में. Excuse me, sir. हाँ जी. So ये relativity theory है? नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ और है बेटा. वो भी दैट वाज 20 इयर्स अहेड ऑफ इट्स टाइम, है ना. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज लास्ट में आज डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं. जो इंटरेस्टेड होंगे वो स्टे बैक कर सकते हैं. तो ये समझ में आया? तो सन इज Yes, sir. लूजिंग इट्स मास. सन तो बेटा पतला होता जा रहा है. ठीक है, सबसे भयंकर डाइटिंग पूरे यूनिवर्स में, नॉट पूरे यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में अगर कोई कर रहा है, सो दैट इज सन. एंड सन इज लूजिंग इट्स मास 5 मिलियन टन पर सेकेंड. टन का मतलब 10⁻³ kg. ठीक है, इससे भयंकर ढंग से डाइटिंग कोई कर ही नहीं सकता. Sir, so can it regenerate its mass? Mass can be regenerated. ठीक है, but that process is very typical. अब ये जब आइंस्टाइन ने बेटा ये दी थी ना, फिर आइंस्टाइन ने he said कि this reaction can take place on earth also. ठीक है,
भाई मास को आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी, मास लॉस होना चाहिए। एंड देन ही टॉक्ड अबाउट एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। एंड then based on this equation first atomic bomb was made, ठीक है। कन्वर्जन इज बोथ वे है ना, एनर्जी इनटू मास, मास इनटू एनर्जी। और ये जो बेटा मास लॉस्ट और गेन हो रहा है ना, दिस इज हैपनिंग एट एटॉमिक लेवल, ये एटॉमिक लेवल पर होता है, ठीक है। एटॉमिक लेवल में न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं बता दो फटाफट। हेलो, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड Protons. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपका होमवर्क है, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भेजेंगे कितना होता है, ठीक है। और उसमें से किसका मास ज्यादा होता है मैं बता दूं इसमें आपको। चलो, न्यूट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा होता है, ठीक है। और जब ये फ्यूजन या फिजन होता है तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आपस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि वो मास जो है वो इंक्रीज हो गया है ना, या फिर एनर्जी से मास बनाया हमने, तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपने एनर्जी से जो है एक डॉगी बना दिया या आयरन बना दिया या गोल्ड बना दिया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। उस एनर्जी से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं, है ना, दे विल कन्वर्ट इनटू ईच अदर। अगर मास बढ़ना है तो फ्यू प्रोटॉन्स विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन्स एंड मास विल इंक्रीज, ठीक है। दैट्स हाउ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मास। बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, बट दैट्स गुड, है ना। आगे बढ़े। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, if all the neutrons would be combined together, would it be the densest thing in the solar system or universe? हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। आप कह रहे हो सर सोलर सिस्टम बाद में पढ़ाना है ना, पहले दो तीन और चीजें बता दो। देखो बेटा, एक तो पहले एक चीज और है ना, लेट मी क्लियर ऑन दिस। अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया है, हो सकता है आपको लगा हो सर थोड़ा फास्ट चले गए, अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया बेटा, प्लीज आस्क मी सर, कैन यू प्लीज रिपीट दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, है ना। दैट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क मी अगेन। चलो लेट्स सी हियर। हाँ जी श्रेयांशु, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर पहला तो किसी भी कोई भी चीज जो है वो किसकी बनी होती है, एटम की बनी होती है ना। और एटम में जो न्यूक्लियस है ना, पूरा का पूरा जो मास है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका कोई मास नहीं है एक तरीके से, ना, उनका मास बहुत कम है, ठीक है। अगर मैंने एक फुटबॉल स्टेडियम लिया, क्रिकेट स्टेडियम कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना, अराउंड 1 लाख पीपल कैन सिट इन दैट क्रिकेट स्टेडियम। अगर इस क्रिकेट स्टेडियम में मैंने यहाँ पर बीच में एक क्या रखा, मटर का दाना, आप ढूंढ पाओगे उस मटर के दाने को? बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, बीच में कहीं पर मैंने एक मटर No, का दाना sir. रखा, है ना, सोचो जैसे पार्क में रख दिया हो, ठीक है। और आसपास मैंने क्या किया, आसपास मैंने थोड़े से डस्ट पार्टिकल छोड़ दिए, ठीक है। सिनेरियो समझ में आ रहा है? अब इस क्रिकेट स्टेडियम को अगर मैं छोटा 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 कर दूं, ठीक है, छोटा और छोटा, कितना एटॉमिक लेवल पे ले आऊं, तो दैट इज व्हाट योर एटम लुक्स लाइक, विद दैट मटर का दाना एज योर न्यूक्लियस, है ना, और इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, ठीक है। तो एटम बाय इटसेल्फ इज 99.999% एम्प्टी, और सारा का सारा उसका मास कहां पर होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को ले लें, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, कोई एनर्जी शेल नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ नहीं, है ना। सो दिस इज व्हाट योर न्यूट्रॉन स्टार इज मेड अप ऑफ। और न्यूट्रॉन स्टार इज एक्सट्रीमली डेंस, ठीक है। 1 स्पून ऑफ न्यूट्रॉन स्टार विल वे मिलियन टन,
ठीक है, आई थिंक यू आर आस्किंग सेम थिंग. Yes, sir. ठीक है, दिस वी विल डिस्कस, है ना. जब स्टार जो है जब मर जाते हैं ना, व्हेन दे डाई डाउन, सो दे डाई डाउन इन टू फॉर्म्स. सो उन दोनों फॉर्म को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहां पर न्यूट्रॉन स्टार फिर से ले लेंगे. बट एनी डाउट यू हैव, है ना, कीप आस्किंग. सो डेथ ऑफ सन, ठीक है, सन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो स्टार्स जो है वो टू वेज में दे डाई डाउन. वन ऑफ द वेज इन विच सन विल फॉलो. ठीक है, हर स्टार जो है वो दो चीजें फॉलो करता है. कौन सा स्टार कौन सी चीज फॉलो करेगा वो भी हम बाद में देखेंगे जब स्टार्स डिस्कस कर रहे हैं. अभी सिर्फ सन की बात कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ सन विल डाई डाउन. ठीक है, सन इन द एंड ईयर्स, वो अपने आखिरी सालों में 5 बिलियन ईयर्स के बाद, ठीक है, इट विल बिकम अ रेड जायंट. कितना बड़ा, अर्थ तक पहुंच जाएगा वो, इतना बड़ा हो जाएगा वो. ठीक है, and that red giant will become a planetary nebula, then white dwarf, and then it will become a black dwarf. So black dwarf is not a black hole but a close to it. ठीक है, हमें ये कैसे पता चला सन ऐसे मरेगा? They kept on observing. तो कुछ stars जो they were already dying down, so they observed different phases of the stars, and then they have theoretically formed this कि sun जो है end years में it will die down like this. ठीक है, Excuse me, sir. हाँ जी. और Sir, लास्ट, you हाँ जी 1 मिनट, है ना, लास्ट में जो है सन जो है वो अर्थ के साइज इतना ही रह जाएगा. हाँ जी बोलो. Sir, you said that the sun's mass is decreasing and it's shrinking. Then how at the end years it expands and becomes so large in size? ओके, अगर सन का मास बेटा, लेट से सन का मास जो है वो सन का मास जो है लेट से इज 1000 kg. ठीक है, और सन का मास इज 1 मिलियन kg. अब इसमें अगर 1 ग्राम का मास जो है वो एवरीडे अगर लॉस हो रहा है तो विल इट इफेक्ट द सन? No, sir. नहीं ना. तो सन इज लूजिंग 5 मिलियन टन पर सेकेंड, बट दैट्स अ पीनट कंपेरेटिव टू एक्चुअल मास ऑफ सन. Okay, sir. हाँ जी. So you told that hydrogen in sun converts into helium, but do helium converts into something else? नो, हीलियम डज नॉट कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स. जो फ्यूजन की रिएक्शन होती है वो आपका जो एलिमेंट्री टेबल है, ठीक है, तो उसमें जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं तो उन्हीं में पॉसिबल है, एंड इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट इन हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो ये जो रिएक्शन है जहाँ पर हाइड्रोजन combines to form helium, that can take place only at certain temperature, है ना, that's around 5 million degree Celsius. ठीक है, उस टेम्परेचर से ऊपर ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. आप लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब तो सुना है, क्या आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉम्ब सुना है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. एटॉमिक बॉम्ब के अंदर क्या होता है ये बता दो मुझे. Atoms. हेलो, कौन सा एलिमेंट होता है? नहीं पता? हेलो जी, फिर तबाही कैसे मचाओगे? थोरियम. यूरेनियम. यूरेनियम, है ना, इट्स अ हैवी मेटल, नॉट इजली अवेलेबल. ठीक है, तो यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में है. तो एटॉमिक बॉम्ब के लिए यू नीड यूरेनियम बेसिकली ना, फिर उसको यूरेनियम को भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रोसेस करके बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो है यू डोंट नीड वेरी हाई टेम्परेचर और एनीथिंग. इन हाइड्रोजन बॉम्ब, है ना, हाइड्रोजन गेट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म हीलियम. हाइड्रोजन इज रेडिली अवेलेबल ना, कहीं पर भी मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस तो आपको. ठीक है, ओनली थिंग इज दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर. तो दो टाइप के बॉम्ब होते हैं बेटा हमारे, एक हाइड्रोजन बॉम्ब और एक एटॉमिक बॉम्ब. ये जो है आपका फ्यूजन पे है और ये न्यूक्लियर फिजन पे है. यहाँ पर यूरेनियम को तोड़ रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, इसको
एक्टिव करने के लिए, है ना, कि ये रिएक्शन शुरू हो जाए, इसके अंदर एक मिनिएचर एटॉमिक बॉम्ब होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर एक छोटा सा एटॉमिक बॉम्ब होता है। पहले एटॉमिक बॉम्ब फटेगा, फिर इतनी हीट एनर्जी पैदा होगी कि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये रिएक्शन फिर इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि फिर वो चेन रिएक्शन बन जाएगी। इट विल कीप ऑन हैपनिंग। So which is more powerful? Hulu, this is 10,000 times more powerful. ठीक है। Now USA, Okay, sir. Russia, they have got hydrogen bomb which are 1 lakh times more powerful than the atomic bomb dropped at Hiroshima and Nagasaki. Hydrogen bomb are too dangerous. तो सन हो गया हमारा। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, when the sun will become a red giant, sir, then the earth will be inside the sun or at the place where Mercury is in present. ओके, अगर सन जो है आफ्टर 4.5 बिलियन ईयर्स, 5 बिलियन ईयर्स, सन जब राइट जॉइंट बनेगा ना, दिस इज योर मर्करी, दिस इज वीनस, दिस इज अर्थ, ठीक है। इट विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग 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 एक्सपेंडिंग, है ना। दिस इज, इट विल रीच टिल अर्थ, है ना। मे नॉट बी एबल टू एनगल्फ इट बट इट विल रीच टिल अर्थ। ये सब क्या है, थियोरिटिकल है, ठीक है। साइंटिस्ट जो है, हो सकता है हमें बेवकूफ बना रहे हो, नॉट बेवकूफ बना रहे, हम जस्ट जोकिंग, मतलब दिस इज ऑल थियोरिटिकल ना। आज से 5 बिलियन साल के बाद सन जब मरेगा तो कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सब कैलकुलेशन है, बट इट्स नॉट सो इजी टू प्रिडिक्ट, यू नो, टू द पॉइंट और एग्जैक्टली, ठीक है। सो दे आर जस्ट सेइंग कि इट विल रीच टिल अर्थ, इट विल एनगल्फ मर्करी एंड वीनस। डन। Yes, sir. Sir. एनी अदर डाउट? सोच लो, आज अच्छा मौका है ना बदला लेने का। सर ने इतना Sir. मुश्किल टेस्ट बनाया था, आज मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी बोलो। Sir, what about the heat of the sun when the sun is a red giant? बेटा, सन हीट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, है ना। अगर सन की हीट एनर्जी रिड्यूस होगी, न्यूक्लियर फिजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, एंड देन इट द गैसेस विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो उसका कोर टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा, सरफेस टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। Sir, how much destruction can a hydrogen bomb cause? हाइड्रोजन बॉम्ब बेटा जो है वो अलग अलग साइज के बनते हैं ना। अब जो बॉम्ब्स बनते हैं तो दे आर मेकिंग मिनिएचर हाइड्रोजन बॉम्ब्स आल्सो। सो मिनिएचर हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो सिंपल जो है आप मिसाइल हेड पर भी लगा सकते हैं, तो वो दे विल कॉज दैट लिमिटेड डैमेज ऑफ लेट्स से 100 किलोमीटर, नॉट 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अगर हाइड्रोजन बॉम्ब थोड़ा सा बड़ा साइज का है, ठीक है, और सबसे बड़ा साइज का हाइड्रोजन बॉम्ब अगर वो दिल्ली पे ड्रॉप होता है, देन इट विल हैव इट्स इफेक्ट टिल, यू नो, इट्स full Gurgaon, Noida, Ghaziabad, these all areas will be completely destroyed. Okay. Okay, sir. Okay. So बेटा planets को दो categories में डाला गया है, ठीक है। First category that is your, this is which planet? Anyone? पहले 4 planet में से। Mercury. 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 And this one? Mars. 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 This is Pluto. Venus. Venus. And this is Earth. ठीक है। तो पहले जो 4 प्लैनेट है ना, फर्स्ट 4 planets, those first 4 planets are called as inner planets. उनको क्या बोलते हैं हम? Inner planets. Inner planets. And outer 4 are called Outer planets. Outer planet. Jovian planet. हाँ जी, हाँ जी, So they are also called Jovian planets. we'll discuss. हाँ जी, वेरी गुड, जोवियन planets. तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। So these first 4 are called inner planets,
and this inner planets are also called as dwarf planet. ड्वार्फ प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी जो 4 बाहर हैं, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, उनके कंपेरेटिवली ये 4 प्लेनेट जो हैं ये बहुत छोटे छोटे लगते हैं, है ना। जो आउटर 4 प्लेनेट है दोज आर लाइक बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, ठीक है। जो इनर प्लेनेट है दे आर लाइक टीटी बॉल और मार्बल्स, है ना। दैट्स द डिफरेंस इज देयर, ठीक है। सो इनर 4 प्लैनेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट्स, राइट। जो आउटर के जो 4 प्लैनेट है बेटा, ये वो सिर्फ और सिर्फ सन की तरह गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है। उनमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। हाँ जी, यू आर फॉलोइंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नोट कर लो, है ना। आप नोट कैसे करेंगे? यू नोट इट डाउन इन फॉर्म ऑफ अ टेबल saying inner planets and outer planets. Inner planets are your Mercury, Earth, sorry, Venus, Earth and Mars. Outer planet are your Jupiter, Uranus, Neptune and Saturn. Jupiter के बाद जो second biggest is your Saturn, then is Uranus and then is Neptune. These are called as dwarf planet and these are called as giant planets, ठीक है। These are called terrestrial क्योंकि यहाँ पर solid surface है, ठीक है। These are called as gaseous. ठीक है, इनका जो है there is one more name is there, that is Jovian planets. Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, till date, are we able to observe any other planet of any other system in the Milky Way galaxy? हाँ जी बेटा, बिल्कुल। जो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है that is Alpha Centauri is there. So Alpha Centauri के around they have found planets. Plus they keep on finding planets. Now they are looking for planets with similar Sir, alternate for the conditions as of Earth. हाँ जी, Sir, I was which saying that meet they are characteristics very close. Yes, sir. हाँ जी, बोलो। Alternate planets for the Earth. हाँ जी, नहीं ये सब तो देखो बकवास बातें हैं, ऑल्टरनेट प्लेनेट फॉर द अर्थ, ठीक है। आपको यहाँ से जो है क्लोजेस्ट स्टार तक पहुंचने में इट विल टेक so many years that it's impossible to survive. So either they have to first, either they have, oh, 1 minute. So either they have to first make out, how to make humans survive for that time period. अगर आप closest star है ना, अगर क्लोजेस्ट स्टार तक जाएंगे तो इट विल टेक यू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक जो है हाउ टू मेक ह्यूमन सर्वाइव, दैट इज अ बिग फाइट। इट्स नॉट इजी टू मेक आउट। बेटा ये फाइल में कुछ इशू आ गया है, तो there is no use to finding alternate of Earth till you first decode how to make humans survive thousands of years of traveling. Okay, you'll have to wait, and I'm restarting the system. So do we see a little past of the stars far away from we observe, then as light comes on some time to travel? That's impressive. ठीक है आरुष, लिटिल पास्ट क्यों बोल रहे हो आप? आप बोलोगे मुझे मिलियंस ऑफ इयर्स पहले हुई चीजें भी दिखाई देती हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टार्स और गैलेक्सीज से लाइट टेक्स
millions of years to reach to us. ठीक है, तो अगर लेट्स से यहाँ से बहुत दूर किसी गैलेक्सी में सुपर एक्सप्लोजन हो जाता है ना, तो अब साउंड तो आनी नहीं है क्योंकि देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड टू ट्रेवल, बट लाइट विल रीच. ठीक है, सो वो जो ब्राइट लाइट है वो हमारे तक पहुंचने में मिलियन ईयर्स ले रही है. तो बाय टेलीस्कोप इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट, then you are observing that an explosion has happened in a galaxy, but that explosion had actually happened millions years back. So you can theoretically see the past. So Hanji. that's why the stars we see in the sky may have died a lot years ago. Okay, the stars which you see, they are in the Milky Way. आप मिल्की वे के अलावा किसी और स्टार को देख ही नहीं सकते. आप मिल्की वे के अलावा सिर्फ और सिर्फ किसको देख सकते हैं बेटा? आप मिल्की वे के अलावा सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सीज को देख सकते हैं. ठीक है, फॉलोइंग दिस पार्ट. तो वो Yes, sir. गैलेक्सीज जो है ना, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका जो रेडियस है वो 50,000 लाइट ईयर्स है. सो आप ये बोल सकते हैं कि स्टार विच वी आर सीइंग नाउ, यू नो, इज एक्चुअली दैट थिंग हैज हैपेंड इन दैट स्टार 50,000 ईयर्स बैक. 50,000 ईयर्स से ज्यादा का पास्ट का आप स्टार नहीं देख सकते. गैलेक्सी, ऑफ कोर्स गैलेक्सीज दे कैन बी, यू नो, millions of years away, so millions of light years away. So in that case it's possible. Okay, we are back online. ठीक है, जो आपने लिखा है बेटा, जहां पर डिफरेंसेस लिख रहे थे, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, दे आर स्मॉल. स्मॉल तो लिखा ही नहीं हमने. ठीक है, प्लस इनर प्लैनेट्स की कोई रिंग्स नहीं होती है ना. सैटर्न की रिंग्स तो वो है जो हमें ऑब्जर्व हो जाती हैं, नेकेड आई से भी दिख जाती हैं. ठीक है, बट अदरवाइज योर यूरेनस आल्सो हैज गॉट रिंग्स अराउंड इट व्हिच आर नॉट रेडिली इजीली विजिबल. ठीक है, जो आपका अगर बात करेंगे मरकरी, मरकरी का कोई मून नहीं है. ठीक है, वीनस का भी कोई मून नहीं है. अर्थ का एक मून है. मार्स के 2 मून है. बट जुपिटर, सो देयर यू नो दे हैव गॉट लेट्स मतलब अराउंड 29 मून. और वो मून मिलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए हैं. सो यू नो रिसेंटली ओनली दे फाउंड वन मोर मून अराउंड द जुपिटर. दैट नंबर इज इंक्रीजिंग. Same for Saturn also, number of moon is, you know, it's increasing. So inner planets have got few moons, outer planets have got large number of moons. So are you sharing your screen? It's not coming? Yes, sir, it's not coming. No, sir, it's not there. Okay. Sir, you are not visible in the participants lists also. Yes, sir, you're not in the meeting. Okay. Yes, sir. Okay. Now it's visible. Yes, sir, now it's ठीक है. visible. So write down these also in the differences. Inner planets, no rings. Outer planets have, few of them have got rings. Inner planets have got very few moons, from 0 to 2. That's it. Either no moon or maximum 2 moons. Inner planets are hot. Hot means their core temperature is more high, their surface temperature is more high as comparative to outer planet. ठीक है, inner planet में जो Mercury और Venus है, their temperature is more than 400 degrees Celsius, and outer planet the surface temperature is in minus, that's minus 180, minus 190 degrees Celsius. Difference किसी ने बोला sir, please show us the difference. So done. Okay.
डन। सो आपका MCQ का क्वेश्चन बनता है which of the following is a Jovian planet? तो उसमें you'll have to look for one of these 4 planet in the options. Sir, please do it again. Mhm. Sir, noted. Okay. हाँ जी, first one. Raise your hand who would like to answer. 1 minute. हाँ जी, तो Jovian planets are dashed from the sun. कोई भी आंसर करो बेटा, है ना, ये थोड़ा फटाफट कंप्लीट करते हैं. Far away from the sun. These planets are mostly dash, but do have a Gaseous. gaseous. They are extremely large in size, but low in. Temperature. Temperature. Density. Okay, size की बात करेंगे तो temperature is not related to size, है ना. They are extremely large in size, but low in density, है ना. क्योंकि साइज और टेम्परेचर का आपस में कोई लिंक नहीं होता ना. इट साउंड्स वेरी वियर्ड. सन इज वेरी लार्ज इन साइज बट हैव हाई टेम्परेचर. डजंट मेक एनी लिंकेज. ओके, सो जोवियन प्लैनेट्स 4 हैं. दिस वी हैव डन. Jupiter, Saturn. हाँ जी, वेरी गुड. Uranus So, and Neptune. गैस जाइंट्स एंड आइस जाइंट्स, नहीं इसको छोड़ देते. Jupiter and Saturn. हाँ जी, जुपिटर एंड सैटर्न दे आर आल्सो कॉल्ड एज Ice giants. गैस जाइंट्स. And Uranus and Uranus Neptune, and they are called Neptune are ice giants. ice Ice giants. Ice giants. giants. They are called ice giants. Very good, impressive. You will enjoy doing Socrative of this, है ना. चलो, अब we will take one planet each. हम एक एक planet करके लेंगे, ठीक है, and then we'll write details about each planet. ठीक है. Planets लेने से पहले so few terms you should be aware of जो आगे हमारी आएंगी. ठीक है. First one is the tilt. ठीक है. टिल्ट को और क्या कहते हैं हम? Anyone? Axis. Elliptical. Axis. हाँ जी. बेटा just 1 minute. हेलो. क्या कर दिया? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कर दिया मेरा बल्कि इतना सिस्टम ही हैंग हो गया था आपकी वो आइडिया फाइल करनी है. मैं रीस्टार्ट ही कर देती अभी. आप Okay. So tilt is Earth का जैसे है ना, Earth is tilted around its axis. So this tilt is basically जो plane है around which it's revolving around the sun. तो उस plane के around जो है ये कितना tilted है. अगर हम plane के around axis ऐसे है तो we'll say it's not tilted at all. And if it is like this, then we'll say this angle is the angle of tilt. है ना. This tilt is also called as obliquity. This tilt is also called as Obliquity. obliquity. ठीक है. So just write down obliquity is equals to tilt, which is, okay, I'm writing here obliquity. Okay, obliquity is equals to tilt, which is angle between plane of revolution and axis of rotation.
I hope this thing is clear. Angle between यहाँ पर थोड़ा सा अमेंडमेंट करनी होगी बेटा. Angle between perpendicular to plane of rotation, plane of revolution. ठीक है, तो ये सन है, ये अर्थ है. ठीक है, तो दिस इज योर प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन इज देयर. ठीक है, ये आपका जो है प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन बन गया है. ठीक है, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उससे डिस्टेंस इज व्हाट वी आर मेजरिंग. ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये अगर अर्थ हमारा ऐसे है, दिस इज द अर्थ इज देयर, देन दिस इज द एंगल, इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज देयर. ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, दैट इज फ्रॉम द वर्ड एलिप्स. सर्कल क्या होता है बेटा, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है ना, दिस इज सर्कल इज देयर. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक नेल ली, नेल पे आपने एक थ्रेड बांधा, थ्रेड पर आपने पेंसिल बांधी, देन यू मूव इट अराउंड, दिस इज व्हाट इज फिगर इज कॉल्ड एज सर्कल. अगर आपने यहीं पर सर्कल में एक सेंटर की जगह दो सेंटर ले लिए, आपने दो सेंटर लिए और आपने ऐसे करके एक थ्रेड बांधा और यहाँ पर आपने पेंसिल लगाई, सो व्हाट फिगर यू विल गेट इज एन एलिप्स. ठीक है, फ्रॉम देयर द वर्ड इज डिराइव्ड इज एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, जब हम बोलते हैं अर्थ का ऑर्बिट जो है सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल है, तो एक चीज ध्यान रखें बेटा, अगर ये सर्कुलर है पूरा, ठीक है, अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है अर्थ का, लेट्स से 1 minute. ओके, तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि अर्थ का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो पिंक वाले ऑर्बिट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है. नहीं, अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट इज एग्जैक्टली सेम एज जब हम बोलते हैं कि अर्थ पूरा स्फेरिकल नहीं है, तो इट इज स्लाइटली डिस्टॉर्टेड. ठीक है, सो अर्थ्स ऑर्बिट इज स्लाइटली लाइक दिस, थोड़ा सा एलिप्टिकल है बेटा वो, है ना, मोर और लेस सर्कुलर बट स्टिल नॉट फुली सर्कुलर, तो स्लाइटली एलिप्टिकल. ठीक है Sir, and also the earth is also flattened from its poles. हाँ जी, हाँ जी, तो वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उसी हिसाब से अर्थ ऑर्बिट इज स्लाइटली एलिप्टिकल. और यहाँ पर इन दोनों में से एक पॉइंट पर है ना, यहाँ पर सन है. ठीक है, सन यहाँ पर है और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर्म हो रहा है. तो हो क्या रहा है कि कुछ पॉइंट हैं जो कि क्लोज टू सन है, कुछ हैं जो अवे फ्रॉम सन है. ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पर क्लोजेस्ट टू सन कौन सा पॉइंट है, ए इज द क्लोजेस्ट टू सन है ना, दिस इज कॉल्ड एज पेरीहिलियन, दिस इज कॉल्ड एज एपीहिलियन. हीलियन जो वर्ड है दैट इज फॉर सन. Sir, helium or alien? Sir, is it from H to H or E? H, helium. Okay, helium is for sun. So एंजल, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है उसको बंद करा दो, है ना. पेरी इज क्लोज टू, ठीक है, एपी इज अवे फ्रॉम. ओके, ये टर्म्स हो गई हमारी. ठीक है, सो दिस इज मोर एलिप्टिकल, दिस इज लेस एलिप्टिकल. प्लूटो का जो ऑर्बिट है दैट इज वेरी वेरी एलिप्टिकल. ठीक है, ओके, चलो ये क्वेश्चन है ना, इन हाउ मच टाइम अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन, अर्थ कितनी देर में अपना रोटेशन कंप्लीट करता है. सर इन चैट सेंड मी आंसर चैट बॉक्स.
like 21 hours, 22 hours, है ना, like that. ओके, किसी ने, एक दो ने बच्चों ने मेहनत की है. They have taken help from Google Baba, but still that's a good job. Correct answer is not 24 hours but 23 hours and 56 minutes, and we will see why this is happening. कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तक तो हम 24 hours पढ़ते आ रहे थे. ठीक है. And one question is asked by someone. I am posting it for everyone. If the earth stops rotating, the earth will become completely round. ठीक है, that's true. जो अर्थ अगर इट विल स्टॉप रोटेटिंग, तो जो सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है आउटवर्ड है ना, वो ज़्यादा होता है बजाय पोल के. तो आफ्टर फ्यू 1000 years अर्थ विल अगेन बिकम फुली स्फेरिकल. सर आई हैव अ डाउट. हाँ जी सर ऐसा कुछ दिखा रहा था न्यूज सर फैक्ट्स में कि चाइना में एक ब्रिज है जिससे 4 सेकेंड कम हो गया अर्थ का रोटेशन टाइम. सर हाउ इज दैट पॉसिबल? चाइना में सर एक बहुत बड़ा डैम बना जिससे 4 सेकेंड इधर उधर हो गया रोटेशन का टाइम. सर हाउ इज दैट पॉसिबल? 4 सेकेंड इधर उधर हो गया? Yes. नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है ना. बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं तो उनसे कुछ मिली सेकेंड का टाइम जो है वो इधर उधर हो जाता है. ठीक है, बट डैम बनने से 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड इज अ बिग पीरियड भाई. जो एटॉमिक क्लॉक है वो प्रिसाइज जो है मिलियंथ ऑफ सेकेंड तक प्रिसीशन मेंटेन कर रही है. अगर 4 सेकेंड का रोटेशन इधर उधर हो गया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी. समझ रहे हो? सब सारी की सारी एटॉमिक क्लॉक. It changed slightly. सॉरी सर 0.06 माइक्रोसेकंड्स. हाँ, 0.06 माइक्रोसेकंड, दैट इज ओके. ठीक है, तो बेटा आप ये समझो कि है ना, ये कोई चीज है, कोई डिस्क है जो रोटेट कर रही है. ठीक है, दिस थिंग इज रोटेटिंग. इसका रोटेशन का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा अगर मैंने यहाँ से कोई मास उठाकर यहाँ पर डाल दिया. ठीक है, इट्स रोटेशन टाइम पीरियड विल चेंज. तो सेम गोज, अगर आपने कोई बहुत बड़ा डैम बनाया है, डैम की वजह से देयर इज millions of tons of water is also getting stored there. So there is slight possibility कि जो अर्थ का जो मास है वो slight fraction to fraction amount में वो shift हो गया, and that's causing the change in the time period. तो 0.06 माइक्रोसेकेंड ये पर डे नहीं होगा, ये पर एनम में चेंज होगा. ठीक है, सो इट्स ओके, पॉसिबल. अच्छा ओके सर, थैंक यू सर. इन हाउ मच टाइम अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन? तो ये एक बार देख लेते हैं कि भाई अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन, ये देखो. ठीक है, सो आप यहाँ पर खड़े थे. ठीक है, सन जो है बिल्कुल आपके सर के ऊपर है. जब आपने वन रोटेशन पूरा किया, तो वन रोटेशन पूरा करने पर, ठीक है, सन जो है वो आपके हेड पर नहीं आया बेटा अभी. ठीक है, वन रोटेशन तो कंप्लीट हो गया बट सन इज नॉट एट योर हेड. ठीक है, यू हैव टू रोटेट लिटिल बिट मोर. अर्थ को थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा ताकि जो है सन जो है इट विल कम ऑन इट्स हेड. और जब सन जो है वो आपके हेड पर आ रहा है, फ्रॉम हेड टू हेड, देन यू विल से वन डे हैज पास्ड. ठीक है, सेम वे में अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, है ना, नून टाइम कब होता है? नून टाइम होता है जब सन जो है वो आपके सर के ऊपर था और उसके बाद नेक्स्ट डे भी सन आपके सर के ऊपर हो रहा है, तो नून टू नून इज वन डे. ठीक है, रोटेशन यहाँ से यहाँ तक की जो रोटेशन है, उसके बाद फर्दर इट नीड्स टू रोटेट लिटिल बिट मोर सो दैट वन डे इज कंप्लीटेड. ठीक है, ये जो रोटेशन है दैट इज अराउंड 1 डिग्री, और 1 डिग्री रोटेशन के लिए यू नीड अराउंड 4 मिनट्स. ठीक है, सो अर्थ
यहाँ तक अर्थ completes one rotation in 23 hours and 56 minutes, and then it needs 4 minutes of rotation further so that one day is completed. जिनको अभी समझ में नहीं आया है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जस्ट इस चीज को सोचो बेटा कि अगर आप अर्थ जो है रिवॉल्व नहीं कर रही है, लेट्स से सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है, आप यहाँ थे, आप कब कहोगे कि वन डे हो गया है? जब अर्थ जो है अपना रोटेशन कंप्लीट किया और आप अगर यहाँ पर आए तो क्या वो वन डे कंप्लीट माना जाएगा? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आप यहाँ से आप ऐसे देखेंगे तो सन अभी आपके सर के ऊपर नहीं आया है ना? तो when sun comes on your head again, on top of your head again, then is one day is taken as complete. ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि with revolution, with rotation, sun is also revolving, and that's why this complexity is happening. अर्थ ने पूरा रोटेशन तो किया, बट स्टिल सन हैज नॉट come to the head and it has to revolve 4 minutes more. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक हमने लास्ट ईयर मोशन एंड टाइम वाले चैप्टर में किया था. Yes, sir. चलो लेट्स डू इट. ठीक है, फैक्ट्स रिलेटेड टू मर्करी, प्लीज कीप राइटिंग. हेडिंग इज मर्करी. Okay, I am also feeling a bit uncomfortable. ठीक है, आज काफी स्पीकिंग हो गई. So let's continue in the next class. तो नेक्स्ट क्लास में हम हर प्लेनेट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे. ठीक है, मरकरी का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि मरकरी जैसे आपका अर्थ में एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा? 365. 365. Mercury has 88 days only. ना अर्थ के 365 कहाँ होते हैं? रेवोल्यूशन का मतलब है कि सन Sir, के अराउंड अर्थ 364 पूरा and a घूम रहा है. half कुछ होता. It's 365.2423 something like that, है ना? These many are there, right? So इस ये 0.2423 को compensate करने के लिए we have got leap year is there. ठीक है, सेम वे में मरकरी में 1 year has got only half day. ठीक है, मरकरी जितने दिन में, जितने साल, जितने टाइम में एक रेवोल्यूशन करती है, उतने टाइम में सिर्फ हाफ रोटेशन पूरा होता है, मतलब हाफ डे होता है ना. अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे मरकरी था, अगर सन राइज हुआ है तो मरकरी जब तक यहाँ पर वापस आएगा तो सन सेट होगा, फिर वापस मरकरी घूम के आती है तो फिर सनराइज होता है. तो मरकरी के 2 साल में एक दिन कंप्लीट होता है. ठीक है, सो मरकरी हैज गॉट मर्क्यूरियल डेज बिगर देन मर्क्यूरियल ईयर्स. चलो लेट्स एंड द सेशन. विल डिस्कस अदर थिंग्स टुमारो, नॉट टुमारो, व्हेनेवर इज नेक्स्ट क्लास. Sir, what is backwards spinner? Come again, what is? Thank you, sir. Sir, backwards spinner. Backward spinner. Okay, there are 2 planets. ठीक है, सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, बाकी 2 planets are there, Venus and Uranus. They move in the other direction, and that's why they are called backward spinner. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. Welcome. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Thank Good you, night. sir. Sir, how did Big Bang you, Theory sir. take place? Okay. Big Bang Theory बेटा बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जब यूनिवर्स Bye, के बारे sir. में बात करेंगे. बाय बाय. Bye, sir. बाय. Thank you, sir. वेलकम.